بچے اس کہانی سے دور رہیں، بالغ افراد یہ کہانی سنیں۔ تم نہیں جانتے سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا لہنگا اتارو اور میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اور میں اس کا لہنگا اتار کر علیشا دلہن بنے خود میں سمٹے ہوئے ایس پی آصف کا خوف محسوس کرتی۔ دلہن کے اس جوڑے میں اس کا چہرہ بھی لال پڑ گیا تھا، کیونکہ ایس پی آصف سے 15 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اس نے آج تک آصف کو بھائی آصف کہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ آصف کی بیوی بن جائے گی۔ اور آصف سے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا ایک روبدار لہجے کا مالک اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا تھا۔ علیشا جو آصف کی پھوپھو زاد بہن تھی، علیشا کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں ہی پلی بڑی تھی، اس لیے آصف نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا اور پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ہمیشہ علیشا آصف سے ڈرتے ہوئے اسے اپنا سبق نہیں سنا پاتی اور بدلے میں اسے سزا ملتی۔ اور آج وہ ہر جذبے سے خالی دل لیے اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی، ڈر کے مارے خود میں ہی سمٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آصف بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ شادی تو ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود کلامی کرتی، کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی اور کبھی خود میں ہی لرز رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آصف ایک خوبرو نوجوان، اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایک ہنگورا مارا۔ آصف کی آواز پر علیشا کا دل بند ہونے والا ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا اپنی گردن پیچھے کو گرائے اپنے اندر لگی ہوئی جنگ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے آج وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھ جائے گی۔ مگر آصف ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کہنے لگا، دیکھو علیشا۔ اس کے اس طرح نام لینے پر علیشا کانپ گئی اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی آصف بھائی۔ ایک تو پہلے ہی غصے کے مارے آصف کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے یہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد بھی اسے آصف بھائی کہنے لگی۔ آصف نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کو پکڑا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، کہنے لگا، نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی، اتنی بچی تو تم ہو نہیں، تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں۔ علیشا جو ڈر کے مارے آصف کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی، وہ تو پہلے ہی پتا نہیں کیسے خود کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر سے آتے ہی آصف کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلا۔ علیشا کی گردن آصف کی باہوں میں تھی۔ آصف جو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے علیشا کو جلدی سے بیڈ پر لٹا کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی سانس کو چیک کرنے لگا اور اس سے ہلا کر کہنے لگا، اٹھو، یہ کیا تم نے ڈرامے بازی شروع کر دی؟ مگر علیشا جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس پہ آصف کا ڈر اور خوف اتنا طاری تھا، اس نے تو آج تک آصف کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا علیشا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ڈر کے مارے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ اس کا آصف سے سامنا نہ ہو، کیونکہ جب بھی اس کا سامنا ہوتا وہ بوکھلاہٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی جس کے بعد اسے آصف سے ڈانٹ سننی پڑتی۔ آصف علیشا کو یوں بے ہوش دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر کسی بھی طرح علیشا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ تیار ہوئی ایک نازک بدن پری لگ رہی تھی۔ آصف اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھتے خود کو کوسنے لگا اور کہنے لگا، کیا ضرورت تھی اسے ڈانٹنے کی؟ خیر آصف نے گلاس سے پانی لیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے مسلسل ہلاتے ہوئے کہنے لگا، علیشا اٹھو پلیز، تم ہوش میں آؤ، ورنہ سب لوگ نہ جانے باہر کیا باتیں کریں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جو تم بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو اٹھو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر علیشا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آصف نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد پڑ چکے تھے، جیسے برف میں لگے ہوئے۔ آصف اس کے پیروں کی تلیاں مسلنے لگا کہ کسی طرح اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس کے جسم کو گرمائش دیتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا، اپنے جذبات کو جگا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہوئی تو آصف علیشا کے اوپر جھکا اور اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ جب علیشا نے ایک لمبا سانس لیا اور مشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے لگی، اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے آصف کا چہرہ، اس کی کالی غصیلی آنکھیں۔ وہ دیکھتے ہی گھبراہٹ کے مارے کہنے لگی، پلیز آصف بھائی۔ آصف ایک بار پھر وہ غصے میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اب تم نے مجھے بھائی کہا نا تو معافی کسی صورت نہیں ہوگی۔ علیشا اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کے کہنے لگی، نہیں کہوں گی، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کریں۔ وہ مزید اس کے چہرے کے پاس ہوا، کہنے لگا، کیوں نہ کروں؟ تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے سب کے سامنے اور شوہر ہوں تمہارا، پوری طرح تم میری دسترس میں ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر، میں جو چاہوں جو مرضی کروں۔ علیشا جس کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایسی تھی کہ اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائیں گی، کہنے لگا، تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے یا پھر تم نے کسی اور کو اپنے پاس لانے کے سہانے خواب سجائے ہوئے تھے۔ علیشا کہنے لگی، خدا کے لیے آصف، وہ رشتہ مامو جان نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا کون نہیں، میں نے تو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تمہارا دل خالی ہے تو اس خالی دل میں پھر میں اپنے پہرے لگا دیتا ہوں نا، ڈر کس بات کا؟ علیشا کہنے لگی، مگر آصف، اس سے اگلا لفظ وہ اپنے منہ سے نکالتے نکالتے رکی تھی، بولی، مگر میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو اب دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر ہوں، دیکھو مجھے غور سے، دیکھو تمہیں
क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आया हूँ? नहीं अलीशा, जबरदस्ती तो तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। अलीशा ने नम आंखों के साथ आसिफ की तरफ देखा और चेहरे पर मासूमियत फैलाए कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। आसिफ, क्यों दूं वक्त? जब मुझे किसी ने वक्त नहीं दिया तो मैं तुम्हें वक्त क्यों दूं? तुम उस वक्त कहती ना कि मुझे वक्त चाहिए जब तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो रहा था, तब तो तुम बड़ी नेक परवीन बनकर सबका कहा मानने लगी थी और मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। अलीशा बोली कि आसिफ, आप किसी और को पसंद करते हैं? वो कहने लगा, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ और मैं डंके की चोट पे सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। अलीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हें तो वक्त चाहिए ना, तो लो वक्त, जितना वक्त चाहिए उतना लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब वो सिसकते हुए रोने लगे तो आसिफ एक पल के लिए उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। उसके होंठ पर उसकी वहशत की मोहर उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। कहने लगा, रोना किस बात का? खुद ही तो कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे दूर हट रहा हूँ। पीछे हटो और मुझे सोने दो। वो उठा और अपना ड्रेस तब्दील करते हुए एक हल्के फुल्के ढीला ढाला लिबास पहनकर बेड पर आकर लेटने लगा। तो अलीशा चौंक कर बोली, आप यहाँ? उसकी आवाज सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ा। कहने लगा, क्या मतलब यहाँ? यही रोज सोता हूँ तो यहाँ पर ही सोऊंगा। तुम्हें कोई एतराज है? आसिफ का लहजा देखकर वो डर गई और बोली, नहीं, आप सो जाएं, मैं उधर सोफे पर सो जाऊंगी। वो उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराता हुआ कहने लगा, तुम सोफे पर क्यों सोओगी? बीवी बनाया है तो बीवी की तरह रहो ना। मैं बेगैरत नहीं हूँ जो सबके सामने मर्द बनूं और कमरे में आधी अधूरी बात करते वो बोला, जल्दी से अपना ये ड्रेस उतारो, पता नहीं कैसे तुम इतनी देर से पहन कर बैठी हो। वो अब जोड़ा उतार कर एक नॉर्मल से सूट में आकर मजबूरन बेड पर बैठी क्योंकि ये आसिफ का हुक्म था। आसिफ एकदम गुस्से से भड़क कर बोला, क्या तुम्हें अब लाइट ऑफ करने का भी कहना पड़ेगा? वो डरते हुए बोली, जी जी, मैं वो भी बंद कर देती हूँ। आसिफ की नॉर्मल बात पर भी वो डर के सहम जाती थी। अब एक बार आसिफ उसकी तरफ गौर से देखते हुए दबी सी मुस्कुराहट में मुस्कुरा दिया कि वो कितनी जल्दी उससे खौफजदा हो जाती है, और आज तक यही वो खौफ था कि अलीशा ने कभी आसिफ से बात तक नहीं की। वो लाइट ऑफ करके बेड के एक किनारे पर सिमटते हुए लेटी। आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए उसकी सिसकियों की आवाज जब आसिफ के कानों से टकराई तो वो उसकी तरफ करवट बदलता कहने लगा, क्या तुम मेरे जज्बात को भड़काना चाहती हो? तुम्हें पता है जवान मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो। अगर मैं तुम पर रहम खा रहा हूँ तो उसे तुम मेरा एहसान समझो। अगर यूं ही तुम मेरे करीब सिसकती रही और तुम्हारी ये मदहोश करने वाली आवाज आती रही तो मैं फिर ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं पा सकूंगा। इसलिए चुपचाप खामोशी से सो जाओ, वरना फिर तुम्हारी सिसकियां मैं से निकालूंगा। वो अपनी आधी अधूरी बात कहते अलीशा के खौफ में मजीद इजाफा कर रहा है। खुद के जज्बात पर काबू करते सो गया। सोते हुए अचानक अलीशा उसके करीब आ गई और वो इतनी करीब थी कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते आसिफ की आंख खुली। एक बार उसका दिल धड़का गया था। नाजुक वजूद आंखें और नाक रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी जो उसकी मासूमियत में और इजाफा कर रही थी। सोते हुए वो किसी मासूम से नाजुक सी गुड़िया के सिवा और कुछ नहीं लग रही थी। कमरे में नीम रोशनी थी। आसिफ ने आंखें बंद कर ली, मगर फिर थोड़ी देर बाद अलीशा का बाजू जैसे उसके सीने पर गिरा, उसके दिल की धड़कनों में तूफान मच गया। वो खुद पर बिना काबू किए अलीशा की जानिब अपना सर तकिए से उठाए देखने लगा। जी तो चाहता है कि सब कुछ भूल भाल के अपनी इस खूबसूरत सी बीवी से अपना हक वसूल कर लूं। जो भी था, बीवी तो बन चुकी थी उसकी। वो खुद पर काबू ना रखते हुए अलीशा के बाल उसके चेहरे से पीछे करता उसके माथे पर बोसा देने लगा। अलीशा अपने वजूद पर लम्स को महसूस करती हुई हड़बड़ा कर उठी और आसिफ को अपने करीब पाकर वो सिसकी। कहने लगी, आसिफ भाई, भाई कहने की गलती मत करना, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि कल कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। अलीशा को हमेशा से आसिफ को आसिफ भाई कहने की आदत है, इसलिए वो अब चंद घंटों में जो उनका रिश्ता बदल चुका था आसिफ के बाद भाई कहते कहते रुक जाती थी, क्योंकि वो आसिफ की तरफ से मिलने वाली पहली सजा को पा चुकी थी जिसका निशान अभी तक उसके होंठ पर मौजूद है। वो हड़बड़ाहट में उससे थोड़ा सा पीछे हटी और कहने लगी, प्लीज। वो बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरी बीवी बनके? आसिफ जिस रोब और दबदबे में अलीशा के सामने आता तो अलीशा की तो जान निकल ही जाती थी। न जाने कितनी मुश्किल उसने खुद को अभी तक आसिफ से बचाया हुआ था, या फिर आसिफ अभी खुद ही उसके साथ कुछ इस तरह का ताल्लुक इस्तवार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में जवेरिया थी जो उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्ती नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत और उन दोनों की मोहब्बत के चर्चे यूनिवर्सिटी से होते आ रहे थे। और आसिफ ने तो जवेरिया के साथ ही खुद शादी का ख्वाब सजाया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अलीशा यूं अचानक आ जाएगी, और ये सब भी तो अचानक ही हुआ था। सुबह आंख खुली तो उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर देखा जिस पर अनगिनत कॉल्स जवेरिया की थी और ढेरों उसके मैसेज। न जाने कैसे खबर पहुंच गई कि आसिफ ने अपने कजन से निकाह कर लिया। जैसे ही आसिफ ने कॉल बैक की तो वो बिना रुके आसिफ पर बरस पड़ी। कहने लगी, आसिफ, मैंने तो तुम्हें सब मर्दों से मुख्तलिफ समझा था और तुम क्या निकले? तुम मर्द ऐसे ही होते हो, बाहर लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाते हो, उन्हें दिन रात कस्में देकर अपनी मोहब्बतों के यकीन दिलाकर, और जब बात आती शादी की तो खानदान के चुपचाप शरीफ बच्चे बड़ों की बात मानने वाले बनकर ये भूल जाते कि हमने किसी के दिल में कितने अरमान जगाए हुए हैं। तुमने उस लड़की को अपना लिया, अब तुम मुझे ये कहोगे कि ये शादी मजबूरी है। आसिफ कहने लगा, जवेरिया, अभी तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं जल्दी
से निकलता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहने लगी, बैठकर बात करते हैं, भाड़ में जाओ। जवेरिया का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। शादी की पहली सुबह ही आसिफ जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हुए कमरे से तेजी से निकला और सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे आया तो उसके वालिद कहने लगे, बरखुरदार, कल तुम्हारा निकाह हुआ और आज तुम्हारा वलीमा है और तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। एसपी आसिफ कहने लगा, बाबा, मैं अपनी ड्यूटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता और मेरा निकाह जिस तरह हुआ है ये आप जानते ही हैं, इसलिए अगर ये कोई प्लान होता तो मैं छुट्टियां ले चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है और वलीमा तो रात को होगा ना, तो पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले पहुंच जाऊं। अभी इमरजेंसी मुझे निकलना है। आसिफ जो बिना नाश्ता किए जल्दी से घर से निकल गया और अलीशा कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में आने वाले इस बदलाव को महसूस कर रही थी और आसिफ उसे जाते हुए ये तनकीद करके गया था कि घर वालों के सामने तुम ऐसे ही रहोगी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हूँ। समझ गई। वो शावर लेते हुए बाहर आई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने चेहरे को बगौर देख रही थी, अपने होंठ पर दिए गए आसिफ के निशान को छुपाने की कोशिश। और फिर जब बाहर आई तो मामू कहने लगे, मेरी बेटी कैसी हो? वो अपने मामू को सलाम करके बोली, जी मामू जान मैं ठीक हूँ। अलीशा हंसते रूटीन किचन में गई और कहने लगी, मुमानी जान मैं आपकी मदद करवा दूं। नसीम बेगम जो दिल की अच्छी खातून थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही अलीशा को रखा था। कहने लगी, अलीशा तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, इसलिए तुम अभी कोई काम नहीं करोगी। अब अलीशा बड़े प्यार से अपनी मुमानी को कहने लगी, मुमानी जान मैं कौन सा किसी पराए घर में हूँ, अपने घर में हूँ, रोज भी तो करती हूँ ना, आप बैठे मुझे अच्छा नहीं लगा। उसी वक्त निदा आई और कहने लग गई। अलीशा कहते साथ ही कहने लगी, भाभी अब तो तुम मेरी भाभी हो ना, अब तो हमारी नंद भाभीयों वाली लड़ाई भी हुआ करेगी। आसिफ की बहन निदा और अलीशा हम उम्र थी, दोनों साथ में पली बड़ी थी, बहनों जैसा प्यार था दोनों में, एक ही कमरे में उनका बचपन गुजरा था। कहने लगी, सच पूछो अलीशा, कल रात मैंने कमरे में तुम्हारी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस किया। नसीम बेगम ने अलीशा को कहा, आसिफ तुम्हारे साथ ठीक है? अलीशा ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बस जी में सर हिला दिया। कहने लगी, एक तो ये लड़का भी ना, सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। उधर आसिफ जो घर पर ड्यूटी का कह के सीधा जवेरिया के घर पे पहुंच गया। जवेरिया के घर में जवेरिया और उसकी वालदा ही रहती थी और उसकी वालदा अपनी बेटी के इस ताल्लुकात को बखूबी जानती थी, बल्कि उनकी बेटी से ज्यादा तो जवेरिया की वालदा की ख्वाहिश थी कि आसिफ उनका दामाद बने। खैर आसिफ जवेरिया के घर में दाखिल हुआ और उससे धड़ल्ले के साथ जवेरिया को आवाजें पे आवाजें दे रहा था, क्योंकि आसिफ का आना जाना उनके घर था। जवेरिया की वालदा ने कहा, आसिफ बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें पता है कल से जवेरिया का क्या हाल हो गया है, जब से उसे ये पता चला है कि तुमने निकाह कर लिया अपनी कजन से। वो कहने लगा, आंटी प्लीज, उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं इनकार नहीं कर पाया और अलीशा यतीम थी, मेरी कजन है फूफो की बेटी, उसकी बारात नहीं आई, लड़के ने फ्रॉड किया हमारे साथ, पूरा खानदान इकट्ठा था, तो फिर मौके की मुनासिबत देखकर बाबा ने मुझे बिठा दिया और मैं उस वक्त इनकार ही न कर पाया। किधर है ये जवेरिया? उसकी वालदा ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया तो वो उतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ा, दो दो तीन तीन स्टेप एक साथ फलांग रहा था। कमरे में गया तो जवेरिया अपने कमरे की विंडो की तरफ खड़ी थी। आसिफ ने उसे पीछे से कंधा मारा, कहने लगा, क्या बात है, ना तो तुम फोन पे बात कर रही हो और अब घर आया हूँ, जानते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने मुझे दरवाजे पर वेलकम नहीं किया। कहने लगी, आसिफ प्लीज उस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, जब तुम इतना बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के दावे मुझसे और सुहागरात तुम उसके साथ मनाकर आ रहे हो। आसिफ कहने लगा, तुम्हारी कसम मैं उसके करीब नहीं गया, हमने कोई ऐसा ताल्लुक नहीं अपनाया, प्लीज यकीन करो। वो कहने लगी, यकीन करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल करीब तो उसके जाओगे ही। जाहिर सी बात है जवान बीवी कमरे में होगी तो तुम्हारे जज्बात काबू में थोड़ी रहेंगे। जवेरिया मुंह दूसरी तरफ करके बोल रही थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहने लगा, चलो हम नाश्ता बाहर करें, मैंने अभी तक नहीं किया। जवेरिया जितना भी नाराज होती थी आसिफ हमेशा उससे मना लेता था और इस बार भी उसे पता था कि वो आखिरकार मान ही जाएगी। बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। जवेरिया कहने लगी, प्लीज आसिफ मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने जब कह दिया है कि मेरा मूड नहीं है। पहले लड़ाई होती थी तो कोई और बात थी, वजह इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब आसिफ तुम मेरे नहीं रहे, मैं किस हक से तुम पे हक जताऊं? तुम किसी और के शोहर बन चुके हो, मेरे अरमानों का गला घोट चुके हो। आसिफ ने जवेरिया को दोनों कंधों से पकड़ा और अपने हाथ से उसका चेहरा अपने सामने करते कहने लगा, तुमसे शादी करूंगा, अगर वादा किया है तो निभाऊंगा भी। जबरदस्ती की शादी और मनपसंद औरत के साथ निकाह में बहुत फर्क होता है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारा राज है। जवेरिया प्लीज समझो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हारा सब कुछ दूंगा। जवेरिया उससे कंधा छुड़वाते हुए कहने लगी, क्या तुम अपने खानदान में मुझे नाम दे सकते हो? सबके सामने आसिफ कुछ देर खामोश रहा। कहने लगी, नहीं दे सकते ना, मुझे चोरी छुपके ये तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से। वैसे भी आज तो तुम्हारा वलीमा है ना, तो अपना वलीमा हलाल करो जाकर। कहने लगा, जवेरिया प्लीज, तुम्हें पता है तुम्हारी नाराजगी
تازگی मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जवेरिया आसिफ जिसे देखकर हर कोई खौफ खा जाता। वाकई जवेरिया धड़ल्ले से उसके सामने बोलती थी और शायद यही वजह होती कि मर्द जितना भी गुस्सीला रोबदार हो अपनी मनपसंद औरत के सामने वो घुटने टेक जाता है। मगर जवेरिया ये ठान चुकी थी कि अब किसी भी तरह आसिफ की नहीं मानेगी। वो कहने लगी, जिस तरह तुमने उस लड़की से निकाह कर लिया और कह दिया कि मजबूरी में किया और मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या कल अगर मैं किसी और से शादी करके तुम्हें ये कहूँ मोहब्बत मैं तुमसे ही करती हूँ तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी। जवेरिया की बात सुनकर वो कहने लगा, कंट्रोल योर लैंग्वेज, ये क्या बोले जा रही हो। जवेरिया हर हद पार करते हुए आसिफ को उसके यूनिफॉर्म के गिरेबान को पकड़ते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ। आसिफ, अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो फिर मेरे लिए भी किसी लड़के की कमी नहीं है और प्लीज जाओ यहाँ से और भूल जाओ जवेरिया नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़ते दीवार के साथ लगाते उसके मजीद करीब हुआ। उसके गुस्से वाली आंखें जिनमें जवेरिया ज्यादा देर तक देख न पाई कहने लगा, तुम्हें मैं कब से अपनी सफाई पेश किए जा रहा हूँ कि उससे शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मेरी मर्जी तुम हो जवेरिया, और देखो अगर तुमने मुझे खो दिया ना तो बहुत पछताओगी। जवेरिया कहने लगी, क्या मैं ही पछताऊंगी, तुम नहीं पछताओगे मुझे खो के। आज पहली बार उनके दरमियान इतनी संगीन किस्म की लड़ाई हुई थी। आसिफ अपने बाजू पर लगी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए कहने लगा, इस वक्त मुझे थाने पहुंचना है, तुम्हारे साथ बात फिर होगी और किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, वरना आखिरी दफा कह रहा हूँ तुम मुझे खो दोगी। उसके बाद फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जवेरिया ठिठक सी गई। उसे तो लगा था आसिफ उसके लिए रोएगा, तड़पेगा, उसे मनाएगा, मगर शायद वो भूल चुकी थी जिस तरह का रवैया और जिस तरह की वो बातें कर चुकी थी आसिफ से। मर्द के आगे जुबान चलाने वाली औरत से उसका दिल भरने में देर नहीं लगता। अगर वो जितनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा था उससे दुगनी रफ्तार में उतरता हुआ जवेरिया की वालदा को इग्नोर करते निकला। जवेरिया की वालदा कहने लगी, एक तो ये जवेरिया भी कहा भी था कि जब वो आएगा तो नॉर्मल रहना, मर्द का क्या है, एक नहीं तो दूसरी सही, अब तो उसके पास उसकी जवान बीवी है। उसकी वालदा जल्दी से जवेरिया के कमरे में आई और कहने लगी, जवेरिया क्या कहा तुमने आसिफ से। कहने लगी, कुछ नहीं अम्मी, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, आप यहाँ से जाएं। आसिफ ड्यूटी पे था। शाम को काफी वक्त हो चुका था जब असलम साहब की आसिफ को कॉल आई। कहने लगे, बेटा हॉल में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तुम कहाँ हो अभी तक। कहने लगा, बस पापा पहुंचा 2 मिनट में। वो तेज रफ्तारी में घर के लिए निकला। कमरे में आया। आसिफ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अलीशा सामने वलीमे के जोड़े में तैयार बैठी हुई थी और किसी सोचों में गुम। उस एहसास से वो बिल्कुल ना वाकिफ आसिफ कमरे में इंटर हो चुका था। आसिफ अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट उतार चुका था जब उसे एहसास हुआ कि अलीशा बिल्कुल होश की दुनिया से ना वाकिफ बैठी है। वो उसके करीब गया और कहने लगा, हेलो, किन सोचों में गुम हो तुम। अलीशा हड़बड़ाकर आसिफ की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप कब आए। कहने लगा, तभी आया जब तुम न जाने किन सोचों में गुम थी। बोली, नहीं कुछ खास नहीं। अलीशा के चेहरे पर फैली मासूमियत लाइट पिंक कलर में वो खुद भी गुलाबी सी लग रही थी। आसिफ की नजरें एक पल के लिए उसके चेहरे पर जम सी गईं, मगर फिर वो तैयार होता अलीशा से कहने लगा, अपने दिल में कोई ज्यादा जज्बात या खुशफहमी मत पालना, तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। अलीशा कहने लगी, जानती हूँ, अगर मैं आपके लिए इतनी ही मामूली हूँ तो आप मामू जान के सामने कह दीजिए, क्यों अपनी जिंदगी को आप मेरी वजह से खराब कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, सारी जिंदगी वालिदैन की कमी को महसूस की और अगर अब शोहर मिला तो शोहर के प्यार के लिए। शायद मैं सारी जिंदगी तरसूंगी और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। अलीशा की इतनी बड़ी बड़ी बातें आसिफ के दिल में जैसे घर कर गई थी। वो उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा, मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हो। कहने लगी, नहीं, शादी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अपनी चादर से बढ़कर पाँव नहीं फैलाया, इसीलिए आपका रवैया बर्दाश्त करने की हिम्मत है मुझ में और मैं कभी आपको फोर्स नहीं करूंगी। हमारे इस रिश्ते को निभाने की आप जब चाहें अपनी मनपसंद लड़की से निकाह कर लीजिए। आसिफ उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने खुद के करीब करके कहने लगा, ओ अच्छा। आसिफ का सारा गुस्सा ऐसे था जैसे पानी की तरह बह रहा, मगर वो उस वक्त कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। दोनों एक साथ बाहर हॉल में पहुंचे जहाँ सब मेहमान मौजूद थे। फंक्शन खत्म हुआ। तकरीबन रात के 12 बजने वाले थे जब वो लोग घर वापस आए। नसीम बेगम अलीशा को आसिफ के कमरे तक छोड़ते हुए कहने लगी, बेटा तुम लोग आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। अब अलीशा जो उस भारी ड्रेस में थकी हुई थी कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। दिल में कोई जज्बात नहीं थे। एक तरफ आसिफ का गुस्सा और उसके गुस्से की वजह से उसका डरना, दूसरी तरफ आसिफ का उसके मुंह पे साफ अल्फाज में ये कह देना कि वो किसी और को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। शायद एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। उसका दिल हर जज्बात से खाली था। वो दिल में कोई भी ख्वाहिश पाले बगैर उसने सोच लिया कि इस रिश्ते को निभाएगी जब तक आसिफ ने चाहा। वो ज्वेलरी उतार रही थी। आसिफ भी कमरे में आया। अभी कमरे में आया ही था। रात के 1 बजे उसके मोबाइल पर बेल हुई। अलीशा ने एक नजर उठाकर आसिफ की तरफ और उसके मोबाइल पर डाली, मगर बिना कुछ कहे अपने कपड़े तब्दील करने चला गया। अलीशा समझ गई थी कि यकीनन ये उसी लड़की की कॉल होगी जिसका आसिफ ने कहा था कि मैं मोहब्बत करता हूँ, और वो थी भी जवेरिया ही की कॉल। रिसीव करके कहने लगा, जवेरिया, इस वक्त कॉल करने का मकसद
कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम तो उस वक्त अपनी बीवी के साथ हो गए। जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ गई है ना, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? आसिफ कहने लगा, जवेरिया, वो दांत पीसते हुए बोला था। आसिफ गुस्से से बात कर रहा था कि जब अलीशा ने एक नजर देखा और दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत किए अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो यकीनन आसिफ का ध्यान उस लड़की की तरफ ही रहेगा, और अगर मैं आसिफ को अपनी मोहब्बत दूं तो यकीनन वो उस लड़की को भूल जाएगा। अलीशा आसिफ के सामने आकर खड़ी हो गई। आसिफ का उसका यूं अपने सामने खड़ा होना कुछ अजीब सा लगा। वो जवेरिया से बात कर रहा था। अलीशा खुद से आगे बढ़ी और खुद में न जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए वो खुद से आसिफ के सीने से लगी। दिल तो उस वक्त अलीशा का भी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़ा था। आसिफ का दिल भी धड़क सा गया था जब वो जवेरिया से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। उसने जवेरिया की बात सुने बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया और अलीशा को थोड़ा सा पीछे करके उसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? कल तक तो तुम मुझसे बड़ा डर रही थी और आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो? अलीशा कहने लगी, शोहर है आप मेरे, आप ही ने तो कहा था कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल गया है तो फिर रिश्ते के तकाजे भी हमें पूरे करने चाहिए। वो अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़कर कहने लगा, तुम जानती हो ना किस हक के बारे में बात कर रही हो? अलीशा कहने लगी, जानती हूँ। वो कहने लगा, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? अलीशा ने डरते हुए कहा, जी। दिल में वो जितना डर रही थी चेहरे पर उतनी ही वो हिम्मत जाहिर कर रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो मैं बहुत गुस्से वाला लगता हूँ और आज तक अलीशा तुम कभी मेरे सामने इस तरह नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ? अलीशा क्या है कि वो दूसरी लड़की आसिफ की जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आसिफ के मजीद साथ लगते कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो आसिफ उसे दीवार के साथ लगाते कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? इस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी, सबसे मामू जान को बता दूंगी कि आप इस रिश्ते से राजी नहीं हैं और मेरे करीब नहीं आते। वो उसे बेड पर पटाकर उसके ऊपर झुका और कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हें हक नहीं दिया? कहने लगी, हाँ तो कहूंगी ना, कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि रात के इस पहर उसका शोहर दूसरी लड़की से बात करे। बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी एक दिन हुआ और तुम जेलिस भी होने लगी और मुझ पर हक जताने लगी। अलीशा खामोश रही। हक चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। उसकी गर्दन पर झुकते जैसे उसने उसकी गर्दन को अपने दांतों की गिरफ्त में लिया। अलीशा की सिसकियां निकलने लगी। बोला, इतना सा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ी आई हक लेने वाली। आसिफ पीछे होने लगा तो उसने अपनी बाहों के हसार में ले लिया। कहने लगी, नहीं आसिफ। आसिफ के जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद अब वो भी अलीशा को छोड़ना नहीं चाह रहा था।